So a big political fight has broken out between the centre and the Congress party over train fare for migrants who are returning to their home states. Congress today announced that it will bear the cost of train fare for migrants. It lashed out at the government for selling tickets for the same. Sources and in the ministry, Railway Ministry and also the government panel a short while ago has made it clear that these special trains are being run at an 85% cost to the railways or the central government, and 15% of the cost is being borne by the state governments. Free food, bottled water and also social distancing is being kept in mind as far as those availing these special trains is concerned. Government hitting back at Congress and also lashing out at the Congress party for trying to play politics during COVID-19 lockdown, especially on an issue like migrant travel. More and more state governments has also come out and clarified that they are not charging those who are availing these trains. Instead, they are going to foot the bill of running these trains. रेल टिकट को लेके काफ़ी विवाद खड़ा हुआ है कि कौन रेल का टिकट देगा, और रेलवे मिनिस्ट्री ने ऐसी गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा था कि स्टेट्स जो है वसूली करें मजदूरों से और फिर वो रेल को जाएगा। तो उस पर स्पष्टीकरण चाहिए कि क्या किराया वसूला जा रहा है, वो क्या रेल में आपका क्वेश्चन फैक्चुअली इट हैज टू बी क्लियर्ड। सबसे पहले तो आप ये समझें कि एज फार एज पीपल हु आर देयर, जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स थे, हमारी गाइडलाइंस ने क्लियरली कहा है कि इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट के भाग के रूप में जो मनुष्य जहां है वहीं रहे। उसके बाद बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट गिवन फ्रॉम स्टेट्स फॉर पर्टिकुलर केसेस, उन्होंने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की तो उसके बेसिस पर स्टेट की रिक्वेस्ट के तहत उन लोगों को स्पेशल ट्रेन चलाने की हमने परमिशन दी। जैसे कि आपने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं माइग्रेंट लेबरर्स से, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही हैं, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 states. My colleague Piyush is also joining us live. He's been tracking developments on day 1 of the phase 3 of lockdown in the country. Piyush, of course, the government has clarified as far as the travel for migrants is concerned. But as phase 3 starts today, a new problem is being witnessed on ground, which is, of course, about more and more people coming out, especially outside liquor shops, as some relaxations have come into effect. Well, Shivani, not only outside liquor shops, but also outside we have seen people have started gathering outside railway stations because since morning we have seen different reports coming in from different parts of the country where a few migrant laborers are being sent through railways, through trains, special trains are being run, and even Ministry of Railways has clarified that they have decided to bear the cost of their travelling to their home states. Right now I am present at Old Delhi railway station where few migrant laborers, in fact, they have already started gathering. You see, they are standing here, and we got some information about them gathering here outside the railway station. Right behind me there is Old Delhi railway station, and they are anticipating that the government might run some trains. Maximum of these laborers are from Bihar. I would like to go and speak to them and try to understand their pain, because they are saying that they are stuck here for the last more than 2 months and they are not even getting a proper food to eat. Let us try to speak to them and understand the problems which they are facing. आपका नाम बताइए। सर, हमारा मोहम्मद रहीम है जी। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से। अच्छा, अभी आप कब से फंसे हुए हैं? यहाँ पे 6 महीने से। आप यहाँ स्टेशन के बाहर पहुँचे हैं, क्या उम्मीद के साथ? सर, यहीं पे रहता हूँ। हाँ। पार्किंग इसी में रहता हूँ हम लोग। यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत है, खाने पीने कोई नहीं देता कुछ। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम जगते हैं। घर जाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन ट्रेन तो खुला नहीं अभी। तो सर कोई व्यवस्था तो होगा, हम लोग यहाँ मर रहे हैं भूखे। सरकार कोई पूछ भी नहीं रहा है। खुलेगा ट्रेन? सर खुलेगी तो कब खुलेगी? हम लोग जाने के लिए तैयार है, भूखे आदमी रह रहे हैं, क्या करेंगे? यहाँ मजदूर फंसे हुए हैं, मजदूरी बाहर से हम लोग दिल्ली आए मजदूरी करने के लिए,
तो यहाँ कोई साधन नहीं है, ना खाने का साधन है, ना पानी का साधन है, कोई साधन नहीं है ढंग से। तो हम लोग करेंगे क्या? आप कहाँ से, आपका नाम बताइए। अजीत कुमार पांडे का मोतिहारी जिला से हैं हम। कब से फंसे हुए हैं आप? यहाँ हम लोग लॉकडाउन हुआ उसके कुछ दिन पहले से हम लोग यहाँ हैं जी। तो क्या अभी आप स्टेशन पर हैं, क्या उम्मीद है आपको? ये ट्रेन खुले और हम लोग गांव जाएं, और सरकार से एक ये बात कहना चाहते हैं कि जितने भी उनके तरफ से ये रेलवे के लिए फॉर्म आया है कि हाँ आप भरिए, आप गांव जाने की सुविधा है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये वेबसाइट है, वो सारे गलत हैं। जितने भी उन्होंने नोडल पदाधिकारी का नंबर दिया है किसी पर नंबर पर नहीं लगता, वो सब ऑफ जाती है, और ना ही रजिस्ट्रेशन का कोई सुविधा है। कभी कोई कह रहा है थाने में लिखो, कभी कोई कह रहा है फॉर्म डालो। हम लोग परेशान हो चुके हैं। हम लोग तो इस बात की परेशानी कि जो भी नंबर दिए गए सब गलत है, किसी पे कोई बात नहीं हो पा रही। किसी पे कोई बात नहीं हो रही। सब गलत है, किसी पे सब गलत है, सब स्विच ऑफ कर रखा है, कोई सब गलत है। फार्म सब दे दिए। There are some laborers from Uttar Pradesh also. We'll try to speak to them also. आप कहाँ से बताइए? सर मैं बस्ती जिला से हूँ। क्या समस्या आपको सामने? सर हमें बहुत खाने पीने को दिक्कत है, एक टाइम खाते हैं फिर शाम को ऐसे भूखे सोते हैं सर। घर जाना चाहते हैं? जी सर। आप कब से फंसे हुए हैं आप? सर मुझे हो गया 7-8 महीने हो गया सर। आप कहाँ से हैं सर? गोंडा के साहब जी, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? यही खाना पीने की दिक्कत पड़ रही है। घर चले जाएं, कोई साधन चल जाए तो घर चला जाऊं, यहाँ पड़े पड़े क्या करूं, नहीं खाने पीने की कोई व्यवस्था है ही नहीं है। तो सरकार कह रही है ट्रेन खुलेंगी, कहीं ना कहीं उम्मीदें बंदी हैं। तो कब तक खुलेगी साहब? जब जान चली जाएगी तब खुलेगी। कह रहा ट्रेन खुलेगी, कहाँ खुल रही ट्रेन? कोई नहीं ट्रेन खुल रही। कोई कह रहा इधर फार्म भर दो, कोई कह रहा उधर फार्म भर दो, है कोई बता रहा 50 रुपये का फार्म मिलेगा, वो वाला भर दो। तो कहाँ से फार्म भर के अभी तक? क्या जो 50 रुपये फार्म लेके आऊँ तो भरूँ? ऐसे नहीं तो पैसे कहाँ से 50 रुपये फार्म भरेंगे? These are the problems which Shivani, the migrant laborers are facing, and see they are also waiting, and we have seen them waiting not only here at Old Delhi railway station but also when we were entering here inside the railway station, there were some people standing there at the boundary of also railway station, and they are waiting for in fact for the railways to open some trains, to begin some trains so that they can go to their respective